بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی 400 پار، رشی سونک نے استعفیٰ دے دیا، کیئر سٹارمر نئے وزیر اعظم۔ تبدیلی کا کام فوری شروع ہوگا، برطانیہ کو دوبارہ بنائیں گے، ڈوننگ سٹریٹ پر وزیر اعظم کی حیثیت سے سٹارمر کا پہلا خطاب۔ ایران میں صدارتی الیکشن کا دوسرا دور، عوام کا جوش و خروش، پزشکیان یا جلیلی ہفتے کی صبح تک معلوم ہو جائے گا۔ نارتھ اسرائیل میں مسلسل دوسرے دن حزب اللہ کے حملے، آئی ڈی ایف کمانڈر ہلاک، جنین میں 7 فلسطینی جاں بحق۔ حزب اللہ اور حماس لیڈرز کی بات چیت، غازہ سیز فائر اور جنگ کی صورتحال پر غور۔ حماس کے منصوبے پر بات چیت کے لیے اسرائیلی ڈیلیگیشن قطر پہنچا، فیصلے کے لیے بائیڈن نے کی نتنیاہو کی تعریف۔ جنگ بندی کوششوں کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے، القسام نے کہا شجاعیہ میں 10 اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موریٹانیہ ساحل کے قریب کشتی الٹنے سے 90 ہلاک، کئی لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ نیٹ یو جی پھر سے رکھنے کی ضرورت نہیں، ایماندار طالب علموں کا نقصان ہوگا، سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کا حلف نامہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ برطانیہ کے الیکشنز میں لیبر پارٹی چھا گئی اور 400 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرتے ہوئے وزیر اعظم رشی سونک کی کنزرویٹو پارٹی کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا۔ اس طرح لیبر پارٹی کے لیڈر کیئر سٹارمر برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے۔ سٹارمر نے نتیجوں کے بیچ وکٹری سپیچ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے کر دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے نئی پالیسیاں لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا کام فوری شروع ہوگا۔ لیبر پارٹی نے 412 سیٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ کنزرویٹو پارٹی 121 تک سمٹ گئی۔ لیبر پارٹی کو 211 سیٹوں کا فائدہ ہوا، جبکہ کنزرویٹو پارٹی کو 250 سے زیادہ سیٹوں کا نقصان ہوا۔ برطانیہ میں انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور نارتھ آئرلینڈ میں جملہ 650 سیٹیں ہیں اور حکومت بنانے کے لیے 326 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ ڈوننگ سٹریٹ پر وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنی پہلی تقریر میں سٹارمر نے کہا کہ ہمارا کام بہت اہم ہے، ہم فوری کام شروع کریں گے۔ انہوں نے بکنگم پیلس میں کنگ چارلس سے ملاقات کی اور وہاں انہیں حکومت بنانے کی باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی۔ سٹارمر نے کہا کہ ملک کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے، اب دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ جگہ ہے، اس کے لیے کچھ وقت لگے گا، لیکن اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تبدیلی کا کام فوری شروع ہوگا اور ہم برطانیہ کو دوبارہ بنائیں گے۔ ہم سرحدوں کو محفوظ بنائیں گے، سڑکوں کو محفوظ بنائیں گے، ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کریں گے، انرجی بلز میں کمی لائیں گے، ایک ایک اینٹ سجاتے ہوئے ہم انفراسٹرکچر کی تعمیر کریں گے، ہم عالمی معیار کے اسکول اور کالجز بنائیں گے، سستے گھر دیں گے، میرے جیسے ورکنگ کلاس کے لوگ جس سیکیورٹی کے خواہش مند ہیں ہم وہ سیکیورٹی دیں گے۔ نئے وزیر اعظم نے کہا کہ بہتری کی طاقت سیاست بہتری کی طاقت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت ان کے لیے عزت افزائی کی بات ہے۔ سٹارمر نے قوم کو پھر سے کھڑا کرنے کا وعدہ کیا۔ لیبر پارٹی لیڈر نے رشی سونک کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم آپ کی محنت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب ملک نے تبدیلی کے لیے فیصلہ کن انداز میں ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے اب ملک اہم ہے، پارٹی نہیں۔ رشی سونک نے وزیر اعظم کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ وہ کنزرویٹو پارٹی لیڈر کی حیثیت سے بھی استعفیٰ دیں گے، لیکن وہ ایسا فوری نہیں کریں گے۔ رشی سونک نے جو انڈین اوریجن ہے اپنی ہار قبول کرتے ہوئے عوام سے کہا کہ میں نے آپ کا غصہ سنا ہے۔ اس طرح کنزرویٹو پارٹی کا 14 سال کا دور ختم ہوا۔ یہ کنزرویٹو پارٹی کی بدترین شکست ہے، اب اسے اپوزیشن کی کرسیوں پر بیٹھنا پڑے گا۔ رشی سونک حکومت کے کئی وزیروں کو شکست ہو گئی، سابق وزیر اعظم لیز ٹروس بھی ہار گئیں۔
नाइजल राज की पॉपुलिस्ट रिफॉर्म यूके पार्टी ने पहली मर्तबा सीटें जीती हैं और कई सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही है। इस तरह उसने राइट विंग वोट्स काटे हैं और कंजर्वेटिव पार्टी की शिकस्त में उसका अहम रोल है। लिबरल डेमोक्रेट्स पार्लियामेंट में तीसरी बड़ी पार्टी की हैसियत से उभर कर सामने आए हैं। ये कई बरसों में लिबरल डेमोक्रेट्स का अच्छा मुजाहरा है। ग्रीन पार्टी को कुछ फायदा हुआ, स्कॉटिश नेशनल पार्टी का सफाया हो गया और वो तकरीबन 40 सीट हार गई। उनमें से ज्यादातर सीटें लेबर पार्टी ने जीती हैं। एक और अहम इलेक्शंस की बात करते हैं। ईरान में लाखों लोगों ने सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में जोश और खरोश के साथ वोट डाले। अब से कुछ घंटों बाद मालूम हो जाएगा कि ईरान का अगला सदर कौन होगा। मैदान में एतदाल पसंद मसूद पेज़ेश्कियान और सगीर लीडर सईद जलीली हैं। पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था, इसीलिए दूसरे राउंड में फैसला हो रहा है। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने तेहरान के एक पोलिंग स्टेशन में वोट दिया। पहला राउंड 28 जून को हुआ था, जिसमें पेज़ेश्कियान और सईद जलीली ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे। पेज़ेश्कियान वजीर सेहत रह चुके हैं। वो लंबे अरसे से तबरीज के रुकने पार्लियामेंट हैं। जलीली एक सिफारतकार की हैसियत से तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने मगरबी मुल्कों के साथ न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत में हिस्सा लिया। 28 जून के इलेक्शंस में 24 मिलियन से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। जो दूसरा मरहला जीतेगा वो सदर इब्राहिम रईसी की जगह लेगा, जिनका 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में इंतकाल हुआ था। जुमला 61 मिलियन लोग वोट देने के अहल हैं। इस दौरान ऐसे इशारे मिले हैं कि पहले राउंड के मुकाबले में दूसरे राउंड में लोगों ने ज्यादा जोश का मुजाहरा किया। इलेक्शन अहदेदारों ने बताया कि मुल्क भर में 58,664 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। हफ्ते की सुबह तक नतीजों का रुझान मालूम हो जाएगा। खामनेई ने सरगर्मी से वोटिंग में हिस्सा लेने पर ईरान की आवाम की तारीफ की। उन्होंने वोट देने के बाद कहा कि वो इस दिन के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हमारे प्यारे लोग वोट देंगे और बेहतर उम्मीदवार को चुनेंगे। इस मरहले पर लोगों को जोश और जज्बे के साथ अपना काम खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी कौम को कामयाबी और खुशहाली दिलाए। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल में कई रॉकेट दागे। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने मितोला यहूदी बस्ती में इसराइली फौज के आउटपोस्ट पर जासूसी नेटवर्क को तबाह कर दिया और अपने मकसद हासिल किए। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उसके मुजाहिदीन ने ओमित यहूदी बस्ती में इसराइली फौजियों के एक इज्तिमा पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने हमलों के वीडियो फुटेजेस भी जारी किए, जिनमें देखा जा सकता है कि जुलान पहाड़ियों और कब्जा किए गए फलस्तीनी इलाकों पर इसराइली अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। चारशंबे को हिजबुल्लाह के कमांडर इसराइली हमले में हलाक हुए थे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल में ताबड़तोड़ हमले किए। कई एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि यह सूरत हाल मिडल ईस्ट में एक और जंग की वजह बन सकती है। इसराइल हिजबुल्लाह तनाव कम करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें भी हो रही हैं। जुमेरात को हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल में 200 से ज्यादा रॉकेट दागे थे और इसराइली फौज के ठिकानों को निशाना बनाया था। इसराइली फौज ने कहा है कि हिजबुल्लाह की फायरिंग में उसका एक सिपाही हलाक हो गया है। इस फौजी की पहचान 38 साल डिप्टी कमांडर की हैसियत से की गई। ये फौजी जोलान पहाड़ियों के इलाके में एक रॉकेट हमले में मारा गया। साउथ लेबनान में इसराइल की शलबारी में एक शख्स जख्मी हुआ। हिजबुल्लाह की सियासी शाख के एक रुकन पार्लियामेंट ने वार्निंग दी है कि हिजबुल्लाह इसराइल पर सरप्राइज अटैक कर सकता है। इब्राहिम अल मूसवी ने कहा कि हिजबुल्लाह के हमले कैसे होंगे इसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। जारी रखते मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को, हिजबुल्लाह और हमास ने गाजा सीज़फायर से मुताल्लिक़ ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। हाल ही में हमास ने एक अमन मंसूबा पेश किया। इसराइली कैबिनेट ने इस मंसूबे पर गौर किया और बातचीत शुरू करने का फैसला किया। इस मंसूबे के तहत गाजा जंग रुकेगी और होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। इसराइली हुकूमत पर ऐसे समझौते को कबूल करने के लिए अंदर और बाहर से काफी दबाव है। ऐसे में हिजबुल्लाह लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास अहदेदार खलील अल हय्या ने गाजा पट्टी की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। एक बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह और हमास लीडर्स ने मंसूबे की तफसीलात पर बातचीत की। इस दौरान इसराइल की खुफिया एजेंसी के चीफ ताज़ा मंसूबे पर बातचीत के लिए कतर पहुंच गए। इसराइली डेलीगेशन की क़यादत मोसाद के चीफ डेविड बर्निया कर रहे हैं। वो सीज़फायर डील को यकीनी बनाने के मकसद से काम कर रहे हैं। अमेरिका और इजिप्ट भी जंगबंदी कोशिशों में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों मुल्कों ने बातचीत के लिए डेलीगेशन भेजने के इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मई के महीने में एक अमन मंसूबा पेश किया था। इसराइली मीडिया में कंफर्म किया गया कि एक डेलीगेशन दोहा पहुंच गया है।
जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि वो डील के करीब पहुंचने की कोशिशों पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। दोहा बातचीत के बारे में तफसीलात का इंतजार है। एक दिन पहले इसराइल के वजीर दिफा योव गैलेंट ने होस्टेजेस के रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए कहा था कि हम होस्टेजेस की रिहाई के समझौते के इतने करीब हैं जितने हम पहले कभी नहीं थे। बाइडेन ने नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कि हम जंग के मकसदों के ताल्लुक से इसराइल से यकजहती का इजहार करते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन ने बातचीत के लिए ओहदेदारों को भेजने पर भी वजीर आजम की तारीफ की। दोहा बातचीत में कतर के अलावा अमरीका और इजिप्ट के ओहदेदार भी हिस्सा ले रहे हैं। मालूम है कि डेविड बर्निया ने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से मुलाकात की। एक दिन पहले इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने बातचीत को हरी झंडी दिखाई थी। गाजा में इसराइल के हमले भी जारी हैं। जबालिया में इसराइल के एक हमले में 5 फलस्तीनी जाँ बहक हुए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसराइल की फौज शुजाइया इलाके में ऑपरेशन जारी रखे हुए। गाजा जंग के 273 दिन पूरे हो गए हैं। हमास की फौजी शाख अल-कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने शुजाइया में 10 इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। एक बयान में अल-कसाम ने कहा कि उसने इसराइली सिपाहियों के कब्जे वाली एक इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में TGV रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इमारत के अंदर घुसकर बाकी सिपाहियों को कुछ फासले से मारा गया। हमले में यासीन 105 रॉकेट से एक टैंक को तबाह कर दिया गया। इस्लामी जिहाद की फौजी शाख अल-कुद्स ब्रिगेड ने गाजा सिटी और रफा में इसराइली फौज के ठिकानों पर हमले किए। खबरों में कहा गया कि मगरबी किनारे के जनीन में इसराइल के हमले में 7 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि उसके सिपाहियों ने एक इमारत को घेर लिया जहां पर फलस्तीनी मिलिटेंट छुपे हुए थे। इसराइल के एक जंगी हवाई जहाज ने इस इलाके में हमला किया। मगरबी किनारे में वक्फे से इसराइली फोर्सेस और फलस्तीनियों के बीच झड़पें हो रही हैं। मस्जिद अक्सा में 40,000 फलस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। इसराइली फौज और पुलिस की सख्त पाबंदियों के बावजूद बड़ी तादाद में फलस्तीनी जमा हुए। कई लोगों को मस्जिद अक्सा पहुंचने से रोका गया। मौरितानिया के साहिल के करीब कश्ती उलटने के एक सानहे में कम से कम 90 लोग हलाक हो गए। ये कश्ती सेनेगल और गाम्बिया से रवाना हुई थी। समझा जा रहा है कि कश्ती पर 170 लोग सवार थे। कई मुसाफिर लापता हैं। ये मछलियां पकड़ने की कश्ती थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लौटते हैं इंडिया। बिहार में 15 दिनों में 10 पुल टूटने के बाद 16 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। डेवलपमेंट सेक्रेटरी चैतन्य पोखराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत इस मसले पर संजीदा है। ये पुल बिहार के सीवान, सारंग, मधुबनी, अररिया, ईस्ट चंपारण और किशनगंज जिले में थे। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि 18 जून के बाद से जुमला 12 पुल टूटे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार दोनों ने इन वाकयात पर खामोशी इख्तियार की है। उन्होंने सवाल किया कि अच्छी हुक्मरानी और करप्शन से पाक हुकूमत के वादों का क्या हुआ। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट यूजी इम्तिहान फिर से रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कई ईमानदार तालिब इल्मों पर असर पड़ेगा। नीट यूजी 2024 में धांधलियों के कई इल्जाम सामने आए जिनमें पेपर लीक के इल्जाम भी शामिल है। कई शहरों में मुजाहरा करते हुए नीट यूजी दोबारा रखने का मुतालबा किया गया। वजारत तालीम ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि इम्तिहान को कैंसिल करने से लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को संगीन खतरा दरपेश होगा। हुकूमत ने बताया कि उसने धांधलियां सामने आने के बाद आला सतह की एक कमेटी बनाई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले खिलाड़ियों से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनसे कहा कि वो अपने मकसद पर नजर रखें। इस मौके पर वजीर आजम ने तमाम एथलीट्स से बातचीत की। नीरज चोपड़ा ने अपने फिटनेस के मसाइल बताए। PV सिंधु ने अपने यकीन की अहमियत जताई। बॉक्सर निखत जरीन पहली मरतबा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने पर काफी खुश नजर आई और अपना एक्साइटमेंट और खुशी छुपा नहीं सकी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। बर्तानिया में लेबर पार्टी 400 पार। ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया। केयर स्टारमर नए वजीर आजम। तब्दीली का काम फौरी शुरू होगा। बर्तानिया को दोबारा बनाएंगे। डोनिंग स्ट्रीट पर वजीर आजम की हैसियत से स्टारमर का पहला खिताब।
ایران میں صدارتی الیکشن کا دوسرا دور، عوام کا جوش و خروش، پزشکیان یا جلیلی ہفتے کی صبح تک معلوم ہو جائے گا۔ نارتھ اسرائیل میں مسلسل دوسرے دن حزب اللہ کے حملے، IDF کمانڈر ہلاک، جنین میں 7 فلسطینی جاں بحق۔ حزب اللہ اور حماس لیڈرز کی بات چیت، غازہ سیز فائر اور جنگ کی صورتحال پر غور۔ حماس کے منصوبے پر بات چیت کے لیے اسرائیلی ڈیلیگیشن قطر پہنچا، فیصلے کے لیے بائیڈن نے کی نتنیاہو کی تعریف۔ جنگ بندی کوششوں کے باوجود غازہ میں اسرائیلی حملے، القسام نے کہا شجاعیہ میں 10 اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موریطانیہ ساحل کے قریب کشتی الٹنے سے 90 ہلاک، کئی لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ نیٹ UG پھر سے رکھنے کی ضرورت نہیں، ایماندار طالب علموں کا نقصان ہوگا، سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کا حلف نامہ۔ یہ تھی آج کے ساتھ دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔